हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैकनेट बाय सोनिका शर्मा। लास्ट 5 वीडियोस के अंदर हमने इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड 100 एमसीक्यूज कवर करे थे। अभी इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे द वेरियस टॉपिक्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। सो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। The syllabus includes the scope and importance of international business, globalization and its drivers, modes of entry into international trade, and various theories of international trade, foreign direct investment, balance of payment, various regional economic integrations, and regional economic agreements and international economic institutions. आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड इट्स मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड द मेन ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। सो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल बिजनेस? So international business can be defined as any type of a business activity that take place across the borders. दैट मीन्स इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर वो सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ इंक्लूड होंगी जो कि हम किसी और कंट्री के साथ करते हैं। दैट मीन्स हम अपनी नेशनल बॉर्डर्स की जो हमारी बाउंड्रीज़ है हम उनको क्रॉस करके अगर किसी और कंट्री के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, whether it is related to purchase and sale of goods and services or transfer of any type of technology, production process or anything else. So international business means any kind of a business activity that take place across the national borders. Different authors define the international business in different terms. So according to Moffat and Zincourt, international business consists of transactions that are devised and carried out across national borders. That means international business के अंदर वो सारी transactions आएंगी जो कि हम कैसे कर रहे हैं across the national borders, अपने national borders को cross करके, that means with the other countries, to satisfy the objective of individuals, companies and organization. किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को, चाहे वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स है कि टू गेट अ बेटर प्रोडक्ट्स एट अ रीजनेबल प्राइस, और कंपनी का ऑब्जेक्टिव है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है टू अर्न अ हायर प्रॉफिट। सो इन किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं विच टेक प्लेस अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स इज नॉन एज अ इंटरनेशनल बिजनेस. Why we do a international business, or what are the reasons behind the international business, or we can say that the importance of a international business. So international business can be take place to increase the sales, to increase the profit of the organization, or to minimize the risk of saturated domestic market, to increase the market shares, or to create a monopoly power, to manage the product life cycles are few of the reasons why the international business take place, or we can say that it is the importance of a international business कि हम इंटरनेशनल बिजनेस करते क्यों हैं। तो कुछ रीजंस थे कि वाई वी डू अ इंटरनेशनल बिजनेस और व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. The next topic is globalization. Globalization used as a synonym of a international business. Both are related to each other. Globalization is a process of integrating the national economy with the world economy, or it is the process of increasing the involvement in international operations. And international operations means purchase and sale of goods and services with the other country, or setting up of an enterprise in another country, or transfer of technology, transfer of processes, all are included in a globalization. इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन कब से आया है? इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आया है 1991 के अंदर, जब इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को ऑप्ट किया था, दैट इज एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. उसके बाद से इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड स्टार्ट हुआ. तो व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल विच प्रोवाइड अ मोमेंटम टू द ग्लोबलाइजेशन की, और वी कैन से दैट व्हाट आर द मेन ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन का जो आज के टाइम पे जो ट्रेंड है वो इतना कैसे इंक्रीज हुआ. सो देयर आर 4 मेन ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन: cost driver, government driver, market driver and competition driver. So
every organization want to reduce its manufacturing cost or its transportation cost or its marketing cost. सो कोस्ट एडवांटेज लेने के लिए आज के टाइम में कंपनीज क्या करती हैं, इंटरनेशनल बिजनेसेस या फिर ग्लोबलाइजेशन को ऑप्ट करती हैं कि जिस कंट्री के अंदर उनको अगर कोई किसी दूसरी कंट्री के अंदर उनको कोई रॉ मटेरियल एडवांटेज मिल रहा है कि उस कंट्री से में रॉ मटेरियल चीप कॉस्ट पे अवेलेबल है या वहाँ पर लेबर चीप कॉस्ट पे अवेलेबल है, तो वो दूसरी कंट्रीज़ में जाके उस चीज़ का क्या करती है, फ़ायदा उठाती हैं. जैसे इंडिया के अंदर चीप लेबर अवेलेबल है तो कंट्रीज़ लाइक US UK उन्होंने अपनी MNCs इंडिया के अंदर ओपन की हुई हैं, वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उनको यहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल है और देन वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं. सो कोस्ट एडवांटेज लेने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, ग्लोबलाइजेशन के ट्रेंड को ऑप्ट करती हैं. द नेक्स्ट वन इज़ कॉम्पिटिशन. With the global market it become an important for any country to any company to opt a globalization to face the global competition. कि आज के टाइम में जब ग्लोबल मार्केट हो चुकी है, हम पूरे वर्ल्ड को अगर हम एक ग्लोबल विलेज की तरीके से ट्रीट करें, तो अगर कोई भी कंपनी है अगर वो उस मार्केट के अंदर compete करना चाहती है तो उसको भी ग्लोबलाइजेशन को ऑप्ट करना पड़ेगा, उसके ट्रेंड को ऑप्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी अगर इंडियन कोई ऐसी कंपनी है वो कहे कि मैं इंटरमीडिएट गुड्स कहीं बाहर से परचेज़ नहीं करूँगा चाहे वो वहाँ से सस्ते मिल रहे हैं, बट अगर वहीं पर दूसरी कंपनी ऐसी है जो बाहर से सस्ते इंटरमीडिएट गुड्स मंगवा कर उनको सस्ते में फाइनल प्रोडक्ट बना के सेल कर रही है, तो ऐसी कंपनी जो इंपोर्ट नहीं कर रही है वो उस मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती. तो अगर हमें कंपटीशन में सर्वाइव करना है, आज के कम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करना है, तो आपको ग्लोबलाइजेशन को ऑप्ट करना ही पड़ेगा. सो कंपटीशन इज़ वन ऑफ द रीज़न और वन ऑफ द ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया. द नेक्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट. द लिबरेटेड ट्रेड पॉलिसीज ऑफ अ गवर्नमेंट और द रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटीज आर सम ऑफ द फ्यू एग्जाम्पल्स दैट अ गवर्नमेंट सपोर्ट अ ग्लोबलाइजेशन. इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई हैं, लाइक WTO है, गेट आया 1947 में, देन उसको रिप्लेस करके 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आई जिसका मेन फोकस था इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना. इसी के साथ बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, लाइक यूरोपियन यूनियन सेटअप हुई, सार्क आया, एफ्टा आया, नेफ्टा आया. सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ और आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्लोबलाइजेशन. सो गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, इन अपनी लिबरल ट्रेड पॉलिसीज़ बना के या लिबरल कस्टम ड्यूटीज़ फाइनलाइज करके वो क्या करती हैं, ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट कर रही हैं. एंड द लास्ट वन इज़ मार्केट. कि मार्केट कैप्चर करना, मार्केट शेयर इंक्रीज करना इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ड्राइवर ऑफ अ ग्लोबलाइजेशन. कि जब हमारी अगर डोमेस्टिक मार्केट है वो सेचुरेशन के पॉइंट पे पहुंच चुकी है, हमें पता है अब हमारी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर और सेल इंक्रीज़ नहीं हो सकती या हमारा मार्केट शेयर और इंक्रीज़ नहीं हो सकता. सो ग्लोबल मार्केट इज़ द ओनली ऑप्शन टू सेल आउट अवर प्रोडक्ट. सो इसके अंदर मार्केट भी क्या है, इज़ वन ऑफ द ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन. इन्हीं सारे 4 पॉइंट्स को हमने डिफरेंट पॉइंट्स के मतलब डिवाइड किया है. जैसे कि competitive advantage can be over a cost or can be over a better human resources. Liberalized trade policy is a part of a government driver. cost advantage declines in transportation cost. ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन cost रिड्यूस हुई. अब हम ईजिली जैसे हम अपनी कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं फ्रीली, ऐसे ही हम दूसरी कंट्री के अंदर भी क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं. रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी. आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट पेस से चेंज हो रही है और उन्होंने हमें एक एडवांटेज प्रोवाइड कराया. फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन कम्युनिकेट विद एनी पर्सन इन द अराउंड द वर्ल्ड. लिबरलाइजेशन इन क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, मतलब हम फ्रीली अपने गुड्स को सेल एंड परचेज कर सकते हैं. गवर्नमेंट पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, मोबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट आर द वेरियस ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सो ये थे कि फैक्टर्स विच प्रोवाइड अ मोमेंटम ऑफ अ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया और अराउंड द वर्ल्ड.
द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर हम कैसे एंटर कर सकते हैं. व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ एंट्री इन अ इंटरनेशनल बिजनेस. फर्स्ट वन इज एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट एक्सपोर्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट. कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स, जॉइंट वेंचर, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ट्रंकी प्रोजेक्ट्स, मर्जर एंड एक्विजिशंस आर फ्यू ऑफ द मोड्स ऑफ एंट्री इन अ इंटरनेशनल business. The first one is export. Export is the simplest form of entering in a international business, having a low cost and a low risk. So export means selling of goods and services produced in a domestic country to other countries. डायरेक्ट एक्सपोर्ट वो एक्सपोर्ट होता है जिसके अंदर हम विदाउट एनी इंटरमीडिएरी अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री के अंदर सेल करते हैं. एंड इन अ इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट हम विद द हेल्प ऑफ अ इंटरमीडिएरी इस्टेब्लिश्ड इन अ पेरेंट कंट्री हम क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं. अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. एडवांटेजेस है कि लो रिस्क है, लो कॉस्ट है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर अपनी एक्सेस प्रोडक्शन को हम दूसरी कंट्री के अंदर सेल आउट कर रहे हैं. और फास्टर एंट्री है, इसके रिगार्डिंग कोई ज़्यादा लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. डिसएडवांटेजेस क्या है. लो कंट्रोल ओवर द मार्केट. जो एक्सपोर्टर है उसको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, ना ही वो मार्केट को कंट्रोल कर सकता है. प्रॉफिट रेशियो भी इसमें क्या होता है, कम. The next method of entry is contractual agreements. Contractual agreement are basically used in the case of intangible properties like patents, trademark, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कॉपीराइट्स एटेक्स्ट्रा. लाइसेंसिंग के अंदर क्या होता है कि जो लाइसेंसर है, मतलब जिसके पास वो टेक्नोलॉजी है, जिसके पास वो प्रोसेस है, वो राइट टू यूज़ दैट टेक्नोलॉजी और राइट टू यूज़ दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो दूसरे पर्सन को एक राइट दे देता है, लाइसेंसी जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर वो क्या कर सकता है, उसके प्रोडक्ट को, उसके पेटेंट को, उसके ट्रेडमार्क को वो यूज़ कर सकता है. और लाइसेंसर को इसके अगेंस्ट में क्या मिलता है, रॉयल्टी फीस. फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग बोथ आर सिमिलर टर्म्स एंड समटाइम्स यूज्ड एज अ सिनोनिम फॉर ईच अदर, बट द मेन डिफरेंस इज दैट franchising is a broader term and licensing is a narrow term. Franchising is used for a long term agreements and licensing is for short term. फ्रेंचाइजिंग के अंदर क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को राइट टू यूज इट्स ब्रांड नेम और टू सेल इट्स प्रोडक्ट, उसको क्या दे रही है, राइट दे रही है, उसको एक अथॉरिटी दे रही है कि वो उसके नाम से क्या कर सकता है, बिजनेस कंडक्ट कर सकता है उसके ब्रांड नेम से. अब ये उससे ब्रॉडर टर्म क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जब फ्रेंचाइजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑपरेशंस बट एग्रीज टू ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द बिजनेस मॉडल इस्टेब्लिश्ड बाय द फ्रेंचाइजर, कि इसके अंदर फ्रेंचाइजर जो है ये फ्रेंचाइजी से डीलिंग करता है कि आपको मेरे ही बिजनेस मॉडल पे काम करना होगा. फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे जैसे मैकडोनल्ड है, KFC है, डोमिनोज है, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंचाइजी. उनका जैसा एक आउटलेट आप एक प्लेस पे देखोगे, सेम आउटलेट आपको दूसरे प्लेस पे मिलेगा. जब कलर कॉम्बिनेशन, द ड्रेसेस ऑफ वर्कर्स वर्किंग देयर ऑल आर सेम, द प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो सेम, प्रोसेस टेक्नोलॉजी उनकी सेम रहेगी, जो वो स्कीम्स ऑफर कर रहे हैं, जो वो प्राइजेज ऑफर कर रहे हैं, ऑल आर सेम. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रेंचाइजिंग. Franchising is basically limited to the trademark and the know-how of the business. Know-how of the business का मतलब है कि how to produce the process technology. द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स आर. एडवांटेजेस फास्टर एंट्री है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक लोकल बिजनेस के साथ हम क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं. रिस्क भी इसके अंदर लो है, लो कॉस्ट है. रीच न्यू मार्केट नॉट एक्सेसिबल बाय एक्सपोर्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़, कि हम इससे ऐसे न्यू मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं जो हम अपने एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ के थ्रू कैप्चर नहीं कर सकते थे. डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके कंट्रोल नहीं होता. फॉरेन पार्टनर कैन बिकम अ कॉम्पिटिटर. ये जो डिसएडवांटेज है ये लाइसेंसर और फ्रेंचाइजर के लिए है. कई बार आप जिस कॉम्पिटिटर के साथ आप डील कर रहे हो वही आपका इन फ्यूचर आपका कॉम्पिटिटर बन सकता है. लोअर इनकम होती है इससे, और कई बार क्या होता है आपकी रेपुटेशन वहाँ पे ख़राब हो जाती है कि वो सेम टाइप का वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा है, या आपके ब्रांड नेम का अगर वो मिस यूज़ करता है फ्रेंचाइजी, तो वहाँ पे जो फ्रेंचाइजर है उसकी क्या है, रेपुटेशन ख़राब होने के भी चांसेस होते हैं. The next method of entry is trunky projects.
टंकी प्रोजेक्ट इज अ वे ऑफ अ फॉरेन कंपनी टू एक्सपोर्ट इट्स प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी टू अदर कंट्री बाय बिल्डिंग अ प्लांट इन दैट कंट्री। इसके अंदर क्या होता है कि एक फॉरेन कंपनी जो है वो पूरा प्रोजेक्ट सेटअप करके दे रही है दूसरी कंट्री को। It is a contract under which a firm agrees to fully design, construct and equip a manufacturing facility and turn the project over to the purchaser। कि उन्होंने पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो इस्टेब्लिश करा, सारी मशीनरीज वहाँ पे इंस्टॉल करी, मतलब रेडी टू यूज़ कर दिया, और जब वो रेडी टू यूज़ की सिचुएशन में आ चुका है उस टाइम पे उन्होंने क्या करा, उस प्रोजेक्ट को परचेज़र को सेल कर दिया। तो इन प्रोजेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, टंकी प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट आता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक और अ मोड ऑफ एंट्री इन अ इंटरनेशनल बिजनेस। इसके अंदर क्या होता है, ओवरसीज मार्केट कंपनीज विशिंग टू एक्सपेंड इनटू ओवरसीज मार्केट कैन फॉर्म अ जॉइंट वेंचर विद द लोकल बिजनेसेस इन द ओवरसीज लोकेशन। दूसरी कंट्री के अंदर, जिस कंट्री में आपको एंट्री करनी है उस कंट्री के लोकल बिजनेसेस के साथ हम लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप लेते हैं। वेयर एंड बोथ जॉइंट वेंचर पार्टनर शेयर द रिवार्ड्स एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस। मतलब दोनों जो पार्टनर्स हैं वो इक्वली या जो भी उनकी पहले से प्री डिसाइडेड रेशियो है उसके अंदर अपना प्रॉफिट भी शेयर करेंगे और रिस्क को भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि कॉस्ट कम हो जाती है, रिस्क भी कम हो जाता है और बोथ पार्टनर्स के एक्सपर्टाइज का बेनिफिट मिलता है। बट डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सपोर्ट और लाइसेंसिंग के कंपैरिजन में कॉस्ट ज़्यादा आती है और इंटीग्रेशन प्रॉब्लम आती है बिटवीन अ टू companies। The next method is direct investment और we can say that foreign direct investment, कि इसके अंदर हम दूसरी कंट्री के अंदर क्या करते हैं, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं। दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर हम अपना न्यू वेंचर स्टार्ट करते हैं फॉरेन कंट्री के अंदर, मतलब सब कुछ ऑपरेशन फैसिलिटीज़ पूरा का पूरा हमने बिजनेस वहाँ पे सेटअप करा है। और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में हमने क्या किया है, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने प्रोसेस को दूसरे पर्सन को लीज पे दे दिया, मतलब जो हमने लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के अंदर करते हैं दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। और ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में हम अपना ही वेंचर दूसरी कंट्री के अंदर क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, हम दूसरी कंट्री में सेटअप कर रहे हैं तो हमें लोकल मार्केट की कंप्लीट नॉलेज है, हम स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, हमारी नॉलेज, हम अपनी चीज़ किसी दूसरे को नहीं दे रहे हैं। और जो भी MNCs हैं यहाँ पे सेटअप है उनको एज अ इनसाइडर ही देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि फॉरेन कंपनी हमारी कंट्री के अंदर इस्टेब्लिश हुई है। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके अंदर कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है और रिस्क सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं और कई बार हम लोकल रिसोर्सेज हमें अवेलेबल नहीं होते। The last method is merger and acquisition. Merger and acquisition means when one company acquire another company is called a acquisition. Acquisition is of hostile nature, मतलब आप ज़बरदस्ती अपनी पावर का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, दूसरी कंपनी जो दूसरी कंट्री के अंदर इस्टेब्लिश है उसके शेयर्स को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। एंड मर्जर रेफर्स टू अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एंटिटीज इनटू वन। मर्जर होता है जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज मिलकर आपस में एक कंपनी बनाती हैं। द मर्जर कंपनी सीज टू एग्जिस्ट एंड डिजोल्व। जो मर्जर कंपनी है वो उसके बाद एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब कि जो कंपनीज आपस में मर्जर हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल A और B मर्ज होके उन्होंने AB कंपनी बनाई, तो A और B कंपनी दोनों अब डिजोल्व हो चुकी हैं और अब नई कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज़ AB कंपनी। So thank you everyone. Please like and subscribe my channel. For any query and PDF you can mail me at crackyournet@gmail.com and you can also post your queries in the chat box. Thank you everyone.